اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جتنی زبردست اچیومنٹ پاکستان کے لیے ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عرصے میں موقع ملتا ہے. پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی سفارتکاری کا معیار کیا ہے؟ نہ تو پارشلی ایران اگریڈ ہے تمام پوائنٹس کے اوپر اور نہ ہی پارشلی امریکہ اگریڈ ہے. اس وقت ایران سے زیادہ امریکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ سے سیف ایگزٹ کرے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، آج کی چند اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ امریکی وفد کی آمد کے حوالے سے جو ہے بہت لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ وہ آج متوقع ہے، وہ ٹیوزڈے کو متوقع ہے. پاکستان اس عمل کا حصہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس مذاکرات کو بلکہ مابانی مذاکرات میں کامیاب ہو سکے. لیکن کیا ان خبروں میں حقیقت ہے یا نہیں، اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت کیا ہے اس پر بات کر لیں گے، اور کچھ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر بھی بات کریں گے. اور اس سب کے لیے میں موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. جب سے ہم مذاکراتی عمل کا وہ ہوا ہے تو پاکستان میں تو بس یہ خبریں ہیں کہ آج بھی کوئی اہم وفد آ رہا ہے، کل بھی کوئی وفد آ رہا ہے، ٹیوزڈے کو بھی کوئی وفد آ رہا ہے. لیکن میرا خیال سے اگر ایسا کبھی ہوگا تو حکومت خود اناؤنس کرے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کانفیڈینشیل بھی رکھا جائے گا اور سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپنلی نہیں کی جائیں گی. لیکن یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس ہفتے کے اختتام تک ایک نہ ایک وفد پہنچ جائے گا. اور obviously کیونکہ مذاکرات 2 فریقوں میں ہوں گے تو اس لیے دوسرے فریق کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن جہاں تک اطلاعات مل رہی تھیں سفارتی جو ہمارے ریسورسز سے اس میں بڑا حصہ یہ تھا کہ جو امریکہ کی شرائط ہیں اس میں تو بڑی حد تک لینینسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایران نے کیونکہ بڑی محدود شرائط رکھی تھی، ٹوٹل 5 شرائط تھی، اور وہ بھی خاصی مشکل ہیں امریکہ کے لیے. تو آئی تھنک اس کے اوپر تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی تھی. اور اس حوالے سے جو کل ایک بیٹھک ہوئی تھی لوگ اس کو سیاسی اینگل دے رہے تھے کہ شاید اس میں پاکستان تحریک انصاف یا ان چیزوں پر ڈسکشن ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس میں ہارڈ کور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹلی ڈسکس کیا گیا تھا وہ اس میں یہ جو ایران اور اس کے مذاکرات تھے اسرائیل اور امریکہ کے، اس کے مندرجات کے اس میں کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو کریڈٹ پاکستان کے اس میں جا رہا ہے کہ پاکستان اگر یہ مذاکرات ہوسٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جتنی زبردست اچیومنٹ پاکستان کے لیے ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عرصے میں موقع ملتا ہے. جنگیں روز نہیں ہوتی، اور جب جنگیں ہوتی ہیں اور اس کو کوئی اپنے طور پر اس کو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے تو آئی تھنک یہ پاکستان کے کریڈٹ پہ ضرور جائے گا. اور دیکھیں، ایک چیز اس میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ گزشتہ روز جو جے شنکر صاحب نے فرمایا، جو ان کے منہ سے پھول جھڑے، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اوقات ہی نہیں دکھائی بلکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی سفارتکاری کا معیار کیا ہے. اس میں بھارت کے اندر بھی ان کے اوپر لان تان ہوا اور انٹرنیشنلی بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں، 2 ملکوں کی جنگ ختم کروانے میں اگر کوئی ملک کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو آپ کتنے مطلب بدترین الفاظ سے اس کو گالی دے رہے ہیں. ہاں، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ خود آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ریجن میں، کوئی آپ سے اس وقت بات نہیں کر رہا، اس کی جو غصہ اور فرسٹریشن ہے وہ آپ ان الفاظ میں نکال رہے ہیں کہ وہ آپ کسی بھی ملک کو جو اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے اس ملک کو آپ خاص طور پر، کیونکہ اگر وہ پاکستان ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں نا، اور ڈپلومیٹ کو ایسے لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے، زیب بھی نہیں دیتی. اور لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سفارتی جو لحاظ ہے اس کی انتہائی مطلب ایک تو یہ کہ اس کو خراب بھی کیا، اپنی پوزیشن بھی خراب کی، اور بھارت کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر انہوں نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ انتہائی نامناسب تھا، جس کو ہر لحاظ سے کنڈیم کیا گیا ہے. بالکل. اچھا، کل رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں امپورٹنٹ اس جنگ کے حوالے سے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر آپ کا اس پہ ویو چاہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات جو ہے نا پھر 10 دن کی ایکسٹینشن دے دی ہے. پہلے وہ 5 دن کی تھی، اب یہ دے دی ہے. پہلے تو اس ایکسٹینشن کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حملے تو ایران پہ ہو رہے ہیں اور ایران بھی جوابی حملے اسرائیل پہ کر رہا ہے، تو اس ایکسٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ صرف مذاکرات کو بامعنی بنانے کے لیے؟ اور اس کے ساتھ ہی پہلی بار جو ہے وہ امریکی آفیشل اس وقت جو وٹکاف ہے جو اس مذاکراتی عمل کا بھی حصہ ہوں گے، انہوں نے اعلان کیا وہاں پر کہ پاکستان کو ہم نے 15 شرائط دے دی ایران کے لیے نا. تو یہ چیز اب ان کی طرف سے آفیشلی انڈورس کر دی گئی ہے. تو اس سال پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ واقعی اب مذاکرات کی بامعنی مذاکرات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، 2 چیزیں تھیں کہ یہ تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ایک طرف سے 15 نکات آئے، ایک طرف سے 5 آئے. اب 15 میں سے 6-7 امپورٹنٹ تھے، باقی سب پہ کمپرومائز ہوا جا سکتا تھا. لیکن جو باقی 5 آئے ہیں اس میں سے 90% کے اوپر کمپرومائز کرنے کو ایران تیار نہیں تھا اور انہوں نے بڑی لمیٹڈ چیزیں رکھی تھیں. اب دونوں طرف سے ایسے پوائنٹس آئے ہیں جس کے اوپر بات کرنی بڑی مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹس ایکسچینج ہوئے ہیں یہ تقریباً 3 دن سے ایکسچینج کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے ایران میں بھی اور امریکہ میں بھی. لیکن آئی تھنک اس کے اوپر کنسنسس نہیں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ اوپن ضرور ہے، اور وہ ڈیبیٹ اوپن جو ہے وہی پاکستان میں ہونی ہے. نہ تو پارشلی ایران اگریڈ ہے تمام پوائنٹس کے اوپر اور نہ ہی پارشلی امریکہ اگریڈ ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بیچ کا راستہ نکالا جائے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایران
ईरान की जंग के हवाले से अमेरिका के पास जो आखिरी ऑप्शन रह जाता है वो है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। अगर वो करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए वो तबाही होगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया का जो प्रेशर है वो अमेरिका के ऊपर आएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये किया जाएगा कि आखिर इजराइल की जंग में आपने ये जो न्यूक्स हैं ये क्यों इस्तेमाल किए। अब इसमें सवाल ये है कि इसीलिए अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग को किसी एंड के ऊपर लाकर कंक्लूड कर दिया जाए और ये कहा जाए कि क्योंकि हमने 1 महीना जंग लड़ी इसलिए हमने ईरान को मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात में हम कामयाब हो गए। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन है जो कि अमेरिका चाहता है और दूसरी तरफ ईरान भी ये चाहता है कि क्योंकि खामनाई साहब की शहादत हुई और उसमें नो कॉम्प्रोमाइज है, तो इसलिए हम भी ऐसे मुज़ाकरात की मेज पर आए कि हम भी अपनी कौम को ये बता सकें कि हमने उस जंग में उनकी शहादत का जो बदला है वो इस तरह लिया कि हमने अपनी शर्तें मनवा ली हैं अमेरिका और इजराइल से। सना मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त और मेरा ख्याल से जो सबसे वैलिड भी है वो मुस्तकिल तौर पर खात्मा चाहता है जंग का। वो ये नहीं चाहता कि जैसे पहले भी हुआ था उनके साथ कि 2-3 महीने बाद अमेरिका आए और उन पे चढ़ाई कर दे। तो ये जो मुस्तकिल जंगबंदी वो चाहता है और ये इनकी एक बड़ी वैलिड रीजन भी है, आई थिंक सो इस पे तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्या इस पे पाकिस्तान अमेरिका को एग्री कर पाएगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुस्तकिल जंगबंदी इतना बड़ा मसला नहीं होगा। असल मसला जो है वो आबनाए हरमुज की जो हाँ पॉसिबिलिटी है कि किसको हैंड ओवर करना ये है। अमेरिका अब ये चाहता है कि ईरान की जारदारी वहां से खत्म हो, लेकिन ईरान जो है वो किसी भी सूरत इसको नहीं देगा, क्योंकि अगर ये उनके हाथ से निकल गया या किसी एक और मुल्क को भी इसमें शामिल कर लिया तो जो ग्रिप जो उन्होंने गर्दन दबा रखी है वेस्ट की और मिडिल ईस्ट की वो उनके हाथ से चीज निकल जाएगी। तो आई थिंक ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अमेरिका का क्या है, अमेरिका आज ये कहता है कि हम आपसे जंग नहीं लड़ेंगे, कल को फिर जंग शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर उनसे ये एश्योरेंस ले भी ली जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 20 साल पहले आपने उनसे अग्रीमेंट किया, लेकिन आपने उस अग्रीमेंट के बाद भी उनके ऊपर अटैक किए, उनके साथ जंग शुरू की। तो इसलिए मेरा ख्याल ये कि ईरान ये समझता है कि हम पे कहीं ना कहीं आगे चल के भी मसाइल आ सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये है कि अगर आप ये करते हैं तो या तो आप ये इसमें रिटर्न लिख कर दें कि अगर आपने दोबारा खुदा न खास्ता जंग शुरू की तो उसके ये फिर रिपरकशंस हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं। और दूसरा जो हमारे ऊपर नाजायज पाबंदियां लगाई गई हैं ट्रेड के हवाले से, अपना तेल जो है वो सेल करने के हवाले से, वो गैर जरूरी पाबंदियां उठाई जाएं, क्योंकि अभी भी उनके लिए जो इनका इंपॉर्टेंट तरीन बायर है वो इंडिया और रूस है। तो अगर वो मार्केट उनके लिए ओपन कर दी जाएगी तो उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है। वो जो सो कॉल्ड जेनजी ने एक एवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, वो एवोल्यूशन खुद ब खुद अपनी मौत आप मर सकता है। लास्ट इसमें जरूर कहना चाहूंगी एक चीज कि वो जो बार बार टाइम फ्रेम बढ़ाया जा रहा है वो इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस वक्त ईरान से ज्यादा अमेरिका ये ख्वाहिश रखता है कि वो किसी तरीके से इस जंग से सेफ एग्जिट करे और से उसको फेस सेविंग मिल जाए, बिल्कुल। अब सना थोड़ा सा पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में सबका मुस्तविद ये इस चीज पे नजर लगी हुई कि पेट्रोल बम कितना गिरता है हम पे, जो कि गिरना ड्यू ही है। ईद पे भी सब सोच रहे थे, लेकिन आई थिंक सो पीएम ने ईद की खुशियां खराब नहीं की लोगों की, लेकिन अब लग रहा है कि अब तो गिरेगा ही गिरेगा। एक ये सिचुएशन हमें देखी थी भारत में, तो बड़ी बुरी सिचुएशन हो गई। हालांकि उनकी ऑयल रिफाइनरीज भी हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां तो मारधाड़ शुरू हो गई है, लाइनें लगी पड़ी हैं। तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है? और इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि जो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने लगे हैं, आपको लगता है कि ये उन क्राइसिस को मिनिमाइज करेगा? पाकिस्तान में तो कोई अफरा तफरी नहीं होगी इस वजह से? नहीं, देखिए मेरे ख्याल ये है कि जब ये जंग का सिचुएशन हुई थी, अभी भी हम हर रोज ये सुन रहे हैं कि हमारे पास जरूरत के मुताबिक जो फ्यूल है वो मौजूद है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इसलिए हमें जाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो फ्यूल की आगे जो डिलीवरी है, उस डिलीवरी में आगे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आया वो होती है या नहीं होती। ईरान ने पार्शियली जिन चंद कंट्रीज के लिए अपना पैसेज खोला था उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें रूस भी शामिल था और चाइना भी शामिल था। लेकिन अब जिस तरह आपने भारत की बात की, भारत में क्राइसिस इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि हमने जैसे पहले भी बात की थी कि वो एलपीजी डिपेंडेंट है, वो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो एलपीजी की सूरत में करते हैं। अब वहां तकरीबन ये कहा जा रहा है कि भारत के चंद एक जहाज तो ईरान ने छोड़ दिए, लेकिन जब इंडिया ने इनके 2 बहरी जहाज जो इनके साथ जॉइंटली मशक़ें कर रहे थे, जब उनको रोका और उनकी मुखबरी जब इसराइल को की गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो फौजी जो है मारे गए जो बहरी जहाज के थे। उसके बाद ईरान ने इनके तकरीबन 60 के करीब जहाज रोके हुए हैं। जयशंकर साहब ने खुद ईरान में फोन किया, उनसे माजरत की, उनको ये एश्योरेंस दी कि हम इस जंग में किसी भी किस्म का सपोर्ट जो है वो इसराइल को नहीं करेंगे, आप खुदारा हमारे जहाज जाने दें। लेकिन ईरान ने अभी तक उनके वो 60+ जहाज जो है वो क्रॉस नहीं करने दिए। अब आप अंदाजा लगा ले कि 60 के करीब बहरी जहाज जो कि फ्यूल लेके जा रहे हैं उसमें कितना स्टोरेज होगा और कितनी कैपेसिटी होगी। तो इसलिए इस वक्त ईरान के अंदर एक क्राइसिस यही नहीं है कि उनके पास ये चीज एनर्जी के हवाले से नहीं है, उनके रेस्टोरेंट्स बंद हैं, उनकी फैक्ट्रीज, उनके कारोबारी मराकज जो इंडस्ट्रीज हैं वो तमाम के तमाम इससे इफेक्ट हो रहे हैं जो कि एलपीजी डिपेंडेंट है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। दूसरी बात, और इसीलिए उनका रुपया जो है पहली मरतबा तकरीबन 3 साल बाद डिवैल्यू हुआ है पाकिस्तान के मुकाबले में। अब अगर हम इस तरफ आते हैं तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा इस हवाले से पहले हिकमत अमली बना ली थी। अलग बात है कि हमारी जेब में अखराजात के हिसाब से अमाउंट कम था, लेकिन हमने अपना एक
लिमिटेड रखते हुए पहले ही इस चीज के ऊपर प्रेफर किया कि हम इसको एक टाइम कैलकुलेटेड कर लें, लेकिन अगर हम इसी के ऊपर चलते रहे तो हम शायद ये महीना गुजार सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये जो अप्रैल का पूरा महीना है ये इसमें ये पूरी जंग जो है वो एक्सपेंड नहीं करने जाएगी। आई थिंक इस अगले हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन में जो है ये जंग किसी न किसी अंजाम की तरफ जरूर जाएगी, जो कि एक बेहतर अंजाम साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तुर्किया भी नहीं चाह रहा, सिर्फ कतर भी नहीं चाह रहा, ओमान ने भी पहले एफर्ट्स किए हैं, और अब सबसे बढ़कर ये कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा सऊदी अरब जो है इस वक्त जो है, उन्होंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए आप नए हरमुज को ब्लॉक करने से पूरी मईशत जो है मिडिल ईस्ट की वो कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए आई थिंक इस वक्त मिडिल ईस्ट भी ये कोशिश करेगा कि ये जंग इन एनी केस किसी भी दिन जो है उसको किसी वाइंड अप की तरफ लेके जाया जाए, और इसमें वो भी एक इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड हैं जो कि इस वक्त ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम फिर यही दुआ को हैं कि अगर पाकिस्तान ये क्रेडिट ले लेता है और ये कामयाबी हासिल कर लेता है तो रीजन में अमन के हवाले से जो एफर्ट है पाकिस्तान का वो बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा। अच्छा सना, बिल्कुल मेरा लास्ट सवाल है, कल तो हम ये डिस्कस कर रहे थे वो कासिम खान की तकरीर के हवाले से, GSP प्लस जो स्टेटस है उसको खतरा है, कुछ इस टाइप की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर सारे टॉक शोज थे। बीच में मैंने ये भी देखा कि बहुत से टॉक शोज में बहुत से जर्नलिस्ट जो है वो सुहेल आफरीदी को उनकी वो टास्क फोर्स, रिहाई टास्क फोर्स याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये कोई टाइम है, क्योंकि उनका एहतजाज कहाँ रंग लाएगा? देखिए ये हमने पीटीआई की लीडरशिप से कल भी पूछा, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कासिम खान साहब ने, मैंने इसीलिए कल भी आपसे कहा था कि एक वेग सिचुएशन है, इसमें अभी तक पीटीआई कंफर्म नहीं कर रही है। ये अलग बात है कि उनके दाएं बाएं जो है वो सो कॉल्ड इंडिया के एजेंट्स बैठे हुए थे, और इसके ऊपर सवाल उठता है कि वो जो दाएं बाएं लोग थे जिनके साथ वो आए थे, जिनके साथ जुल्फी बुखारी साहब भी आए थे और उनके साथ उनके एक दोस्त भी आए थे, वो तीनों जो लोग थे उनके साथ अगर जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे या उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे वो इंडियन डिसेंट के लोग थे। वो क्यों आया उनके साथ थे, उनको कंपनी क्यों कर रहे थे, उनको गाइड क्यों कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर ये कि जहां तक पीटीआई की स्ट्रैटेजी की बात है तो मैं फिर कहूंगी कि जो ऊपर की लीडरशिप है वो टास्क फोर्स के बारे में सिर्फ यही तौजीह दे रही है कि जी हमने कोई एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं करनी, हम सिर्फ इसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमने खान साहब को बाहर कैसे लाना है। अब पता नहीं अदालतें अपनी जगह काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन उनकी कोई एक खास टेक्निक है जो वो अभी तक जिस पे रोशनी नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि केपीके में वो एक हल्के फुल्के अंदाज में एक मूवमेंट जरूर शुरू करना चाहते हैं। अच्छा। और उसमें बुनियादी तौर पर उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो अलीमा खान साहिबा उनकी ख्वाहिश है कि जी वर्कर्स में एक एनर्जी होनी चाहिए, उनकी मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि खान साहब की रिहाई के लिए हमारे कारकुनान और हमारी लीडरशिप कोशिश कर रही है। अगेन सना, मेरा सवाल तो ये है कि ये सिचुएशन जहाँ पे हर आम बंदा भी इस जंग से मुतासिर हो रहा है, तो इस सिचुएशन में इनका एहतजाज, आई थिंक वो उसकी वजह ये सिर्फ ये है कि वो अडियाला में जाते हैं, अडियाला के बाहर एहतजाज भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उस एहतजाज को कहीं कोई रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो केपी में भी एहतजाज करते हैं तो केपी में तो आपकी इटसेल्फ अपनी गवर्नमेंट है, अपनी ही गवर्नमेंट के सामने तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। आई थिंक वो किसी हद तक रैलीज और कैंपेन्स और जलसों की हद तक होगा, क्योंकि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ तो आप खड़े होकर नारे नहीं लगाएंगे और विफाक में आपको आने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में आपकी लीडरशिप वैसे ही वाइप आउट हुई है, तो आई थिंक इस सिचुएशन में वो शायद ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि एक हल्की पुल्की एक्टिविटी रखेंगे ताकि उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे और ये वो एहसास दिलाते रहें कि अपोजिशन जो है वो मसरूफ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।